will be that volunteer. Example number 9.2. Understand that I am having single mobile with me. હું બોર્ડ ઉપર લખીશ તો મને ખબર નહીં પડે તમે હેન્ડ રેઝ કરશો તો એટલે બેટર you unmute and tell किसको रीड करना है. Will be that volunteer now fast. चलो चलो फटाफट करो. Sir, can I? Yes. Who's this? Archie. 1.2. A mobile phone lies along the principal axis of a concave mirror as shown in the figure. Show by suitable एक मिनट. diagram. Archie, एक मिनट. ये तो theoretical question. So you better read example number 9.3. An object is placed at first 10 centimeter, second 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. एक मिनट. We are concave mirror, so we have to write down first. We'll get the idea about sign convention writing that. For concave mirror आपको ऐसा बताया है minus 15 minus 7.5 सेंटीमीटर. हमारे पास दो अलग अलग केसेस है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया है और हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करने को बोला गया है. आर यू क्लियर विद दिस? Yes. So we'll use this mirror equation. For this, we know that from mirror equation, one by v plus 1 by u is 1 by f. We want to find out image distance, so we'll make v as a subject of equation. So we'll get 1 by v as 1 by f minus 1 by u, and hence v can be written as fu upon u minus f. This is a general formula for the image distance in terms of the object distance and focal length. बराबर. फर्स्ट केस में हमें ऐसा बताया गया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर. बराबर. So we are having a value of object distance, we know focal length, and we want to find out the image distance. concave mirror के लिए सॉल्व कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है. आपने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा है. कैन एनीवन टेल मी दैट it will be a which case of image formation by a concave mirror? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 होगा, फोकल लेंथ -7.5 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा. यस, दैट ऑब्जेक्ट इज, जो फोकस का डिस्टेंस 7.5 है, आपने ऑब्जेक्ट को 10 पे रखा है, मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ और सी के बीच में होगा. यस, वेयर विल बी द इमेज प्रोड्यूस्ड? इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा वो भी आप जानते हो. यस, इट इज बियॉन्ड सी, दैट इज 15 सेंटीमीटर, मतलब सी का डिस्टेंस. तो 15 से ज्यादा आपका आंसर आना चाहिए. जब आप एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते हो और आपको ऐसा आइडिया होता है कि आपका आंसर 15 से ज्यादा आना चाहिए, अगर 4 ऑप्शन देखते हो एक ही ऐसा ऑप्शन है तो फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी. लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग चाहिए. बराबर है. चलिए, सो लेट अस सॉल्व इट. So v can be written as f, that's focal length, that is minus 7.5. Object distance, which is given as -10 upon -10 minus of -7.5. If we solve this, ऊपर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7.5 इंटू 10 करोगे तो 75 आ जाएगा. नीचे हो जाएगा -10 minus of minus plus 7.5, so it will be -2.5, and if I'm not wrong, this comes out to be -30 centimeter.
Am I right? Okay. So you kept the object between F and C. ये याद रखने के लिए आपके. And you get the image beyond C. The type of the image is real inverted and enlarged, if it is asked. Now the second case is there. We are asked to find out the image distance when object is at 5 centimeter. So again, it's an object distance, so we have to take negative. We know the formula, so V can be written as F into U. Focal length is minus 7.5. Object distance is minus 5 upon U minus F. तो U की जगह पे minus 5 आ जाएगा. Minus F is minus 7.5. पॉइंट में सॉल्व करना दिक्कत हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस इट विल बी 7.5 into 5 upon minus 5 plus 7.5, so it will be 2.5. so we will be at 15 centimeter. बराबर पॉजिटिव आया. तो ये जो इमेज था -30 वाला, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज दी जो बाजू आपने ऑब्जेक्ट रखा था वही बाजू आपको इमेज मिला. दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. चलिए, ये जब मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 सेंटीमीटर रखा है, वो इमेज फॉर्मेशन का कौन सा केस हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? Where the object is placed, if it is at 5 centimeter, it will be which case? Very good, Swati, correct answer. Okay, Anand bhai bhi sahi bata raha hai कि it is between F and pole, focus and pole, and the image will be produced. उसके लिए image कहाँ पे produce होता है? Is behind the mirror, virtual and erect आता है. So that what we have verified. Are you clear with this? Okay, चलिए, solving next. Think so. Example number 9.4, we can solve it. Again, volunteer to read it. चलिए, again I want volunteer who can help me out to read it, then we'll solve it. सर एग्जाम्पल 9.3 में मैग्निफिकेशन भी ढूंढना है. मैग्निफिकेशन भी फाइन करना है? ओहो, दोनों केस में. चलिए, मैग्निफिकेशन ढूंढना है तो फाइन कर लेते हैं. ये केस का मैग्निफिकेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलेगा? मैग्निफिकेशन के बेसिकली हमने दो फॉर्मूला सीखे हैं. मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और दूसरा एक हमने फॉर्मूला सीखा है मैग्निफिकेशन इज माइनस ऑफ v by u. In this first case, image distance is -30 and you get the object distance आपने रखा था -10. माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, so you get the magnification as -3. This is the magnification in first case. ये second case है, magnification is, साइड में लिख देता हूँ, minus v by u. So it will be minus of, get the image distance as 15, you kept the object at -10. So that comes out to be 1.5. But obviously जब real inverted होगा तब magnification negative आएगा, और जब virtual erect होगा तो ये 1.5 आएगा. इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि this is real and inverted and enlarged image, क्योंकि आप देखिए magnification का वैल्यू 1 से ज्यादा आया है. This is also virtual erect and enlarged image. सर बोलिए. सर 15/5 આવશે. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5. ओके, थैंक यू. चलिए, तो ये भी 3 आ जाएगा. બે માં 3 3, એક માં -3, એક માં +3. Getting with this? Okay. Now example number 9.4, volunteer to solve it, to read it.
will be that volunteer to help me out? चलो बोलो बोलो फटाफट. हेलो सर. आस्था. हाँ यस. हाँ, एग्जाम्पल आनंद भाई 9.4. प्रियम सर. आनंद भाई रीड कर रहे हैं. प्रियम सर. प्रियम जी. ओके प्रियम. Example 9.4. Suppose while sitting in a parked car, you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of radius equal to 2 centimeters. एक मिनट. Yes. एक मिनट. ये तो विंटर की सीजन का ही क्वेश्चन हो गया. यू आर सिटिंग इन योर कार which is parked and jogger is running towards this car and the आप उसको side view of mirror में देख रहे हैं. So can anyone tell me that the side view of the vehicle is which type of mirror, concave or convex? That will give you idea to take a focal length and radius of curvature. Convex. Convex. Very good. बराबर है. So first of all we get an idea that we are solving for a convex mirror. And that convex mirror के लिए आपको डेटा ऐसा दिया गया है कि convex mirror का focal length है आपके पास, sorry, radius of curvature है आपके पास 2 मीटर. 2 मीटर. अब पॉजिटिव लेना पड़ेगा और फोकल लेंथ आप जानते हो कि r/2 होता है तो वो 1 मीटर हो जाएगा. ठीक है. चलिए यस फर्दर. If jogger is running at speed of 5 meter per second, how fast the Jogger becomes image of- जॉगर बिकम्स एन ऑब्जेक्ट. उसका वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकंड दिया है कि वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट हाउ फास्ट द इमेज ऑफ जॉगर इज अपीयर. हाँ बोलो. How fast the image of jogger appears to move when the jogger is A 39 meters, B 29 meters, Okay. C 19 meters and D 9 meters away. ओके. तो हमें ये जॉगर का स्पीड दिया है. जॉगर बिकम्स एन ऑब्जेक्ट फॉर अस. हमें फाइंड करने को बोला है कि आप उसके इमेज का स्पीड फाइंड करके दीजिए. अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिए हैं. सो we'll solve it like that. So we are solving for a convex mirror of focal length 1 meter. आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू दिया गया है. तो आप पहले इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए. फिर आपको जो ऑब्जेक्ट स्पीड दिया है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दिया है कि जो पर्टिकुलर वेलोसिटी से जॉगर अप्रोच कर रहा है कार को, मतलब मिरर को, वो 5 मीटर पर सेकंड है. उसमें से आपको उसके इमेज का स्पीड मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज दैट इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है. तो मिरर इक्वेशन हम यूज करेंगे. ये जनरल है इसलिए लिख रहा हूं. फिर हम एक एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं. फ्रॉम मिरर इक्वेशन यू विल गेट v is equal to fu upon u minus f. बराबर. अभी फर्स्ट केस में आपको ऐसा दिया गया है कि भाई जो जॉगर है वो 39 सेंटीमीटर पे है. तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 39 सेंटीमीटर होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 39 सेंटीमीटर हो गया. आपके पास फोकल लेंथ है, आप अबव फॉर्मूला में डाल दीजिए. v कैन बी रिटन एज इमेज डिस्टेंस. इक्वेशन 1 में से आएगा. फोकल लेंथ वो तो फिक्स रहेगा, दैट इज 1 मीटर. पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्वेक्स है. दिस इज माइनस 39 अपॉन ऑब्जेक्ट इज माइनस 39 माइनस ऑफ 1. So this will comes out to be minus 39 ऊपर और नीचे minus 39 minus 1 minus 40 हो जाएगा. minus minus plus. So your image distance is 39 by 40. इसको सॉल्व कीजिए एक बार, कितना आता है बताइए. 39 by 40. Tell me up to 3-4 decimal places. आप नकुल सर के फोन में रिप्लाई करेंगे नहीं तो आप एक काम कर दीजिए, मेरे को बता ही दीजिए. 0.975. 0.975. ओके, थैंक यू. मीटर. ये आपको इमेज डिस्टेंस मिला. नाउ द अप्रोच आई विल यूज इज दैट कि जो ऑब्जेक्ट है जॉगर खुद का, उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है.
मतलब जॉगर विल मूव 5 मीटर इन 1 सेकेंड, बराबर है। तो पहले वो कहाँ पे था, कितने डिस्टेंस पे था, 39 सेंटीमीटर पे था, वो नजदीक आ रहा है मिरर के। तो आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट विल बी इट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बताइए मेरे को। इसको मैं यू डैश बोल देता हूँ। ऑलरेडी -39 पे तो वो था, नजदीक आ रहा है, मैं 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ। 5 मीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड है, इसमें से मेरे को पता चला कि 1 सेकेंड में ये 5 मीटर नजदीक आ जाएगा। तो पहले जो -39 पे था, अभी वो कहाँ पे आ जाएगा? Can I say it is -39 plus 5? That will be -34 meters. बराबर है। अभी हमारे पास ये इमेज डिस्टेंस आया, तो इसके लिए वापस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया, तो आपके लिए इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। अगेन वही फॉर्मूला में डाल दीजिए F इंटू यू, लेकिन अभी U बदल गया है, बराबर है। तो फोकल लेंथ था हमारे पास 1, अभी इमेज डिस्टेंस में ले रहा हूँ -34 अपॉन U, that is -34 minus 1. So this will be 34 by 35 meters. सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर से बताइए कितना आया। नकुल सर के फोन में रिप्लाई करेंगे तो चलेगा, हाँ? जिसको बोलने में दिक्कत हो रही है, जिन जिन लोगों को। जीरो 0.9714। ओके, चलिए आप मेरे को ये आइडिया बताइए, अनम्यूट होके बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। पहले इमेज डिस्टेंस था जब ऑब्जेक्ट 39 मीटर पे था, तब 0.975। 1 सेकेंड के बाद इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 34 और इमेज डिस्टेंस हो गया 0.9714 मीटर, और हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे फाइंड करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? 1 सेकेंड पहला इन पोजीशन टू 0.975, आफ्टर 1 सेकेंड उसका पोजीशन हो गया 0.9714, तो वो कितना नजदीक आया होगा? वेरी गुड, गेटिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम मनी। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेकिन आपके माइंड में आइडिया ही क्लियर नहीं है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। यस, करेक्ट नंदिनी, यू आर आल्सो करेक्ट, राइट। पर पहला 0.975 पे था, अभी वो 0.9714 पे आया। वहां पे आने के लिए उसको 1 सेकेंड का टाइम लगा, तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल। इट विल बी 0.975 minus 0.9714 in 1 second। बताइए कितना आंसर आता है? विल बी 0.0036 if I am not wrong meters per second। गेटिंग दिस? या फिर आपको फ्रैक्शन में रखना है तो आप 39/40 -34/35 कीजिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं फ्रैक्शन लेके करवाता हूँ। नाउ दिस इज द फर्स्ट केस, एक ही केस सॉल्व किया है, बाकी के सब केसेस में अप्रोच तो सेम ही रहेगा। हियर वी हैव सॉल्व फॉर 39 मीटर, तो पहले मैंने उसके लिए इमेज डिस्टेंस फाइंड किया, फिर उसको 1 सेकेंड के बाद 34 पे लेके गया, 34 के लिए इमेज फाइंड किया, इमेज डिस्टेंस, और उसमें से वेलोसिटी फाइंड किया। सेम वे यू हैव टू डू फॉर 29, 19, 9, जितना भी दिया उसके लिए सॉल्व करना है, अप्रोच तो सेम ही रहेगा। ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ, या खुद ट्राई करेंगे तो भी अच्छा है। इफ एनी डाउट इन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। While writing, keep your video on.
सर यस बोलिए। સર આફ્ટર t ઇક્વલ્સ ટુ 1 સેકન્ડ વાળું જે પોર્શન છે ને એકવાર પાછું સમજાવો છો. હા એવું છે કે say for that person is sitting in a car, वो कार तो पार्क्ड है, मतलब उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है। अभी उसके साइड व्यू मिरर में, मतलब कॉन्वेक्स मिरर हो गया, उसमें वो पर्सन दूसरे पर्सन जो जॉगिंग करके आ रहा है टुवर्ड्स द कार, उसको देख रहा है। तो पहले जो वो पर्सन जॉगिंग करके आ रहा था वो 39 सेंटीमीटर पे था, तो 39 मीटर पे था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 39 मीटर होके उसके लिए हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लिया कि person sitting in a car viewing in mirror will observe that image at 0.975 meter. Now वो पर्सन जो आ रहा है वो तो जॉगिंग करके आ रहा है, तो जॉगिंग का स्पीड है उसका 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो मिरर में आपने देखा होगा उसके 1 सेकंड के बाद वो 5 मीटर नजदीक आ गया होगा। तो जो पहले 39 पे था अभी उससे 5 मीटर नजदीक आ जाएगा तो 34 पे आ जाएगा। So after 1 second, as a person jogging coming 5 meter nearer, so that the object distance will become minus 39 plus 5, that is minus 34. इसकी वजह से जो पहले इमेज 0.975 पे दिख रहा था वो भी अभी थोड़ा नजदीक आ जाएगा, 0.9714 मीटर आ जाएगा। उसमें से हमने फाइंड किया कि पहले 0.975 पे था, 1 सेकंड के बाद 0.9714 पे आ गया, तो वो 0.0036 मीटर्स नजदीक आया 1 सेकंड में, इसलिए उसका स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया 0.0036 मीटर्स पर सेकंड। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। યસ સર થેન્ક યુ. ओके ओके। There are certain numericals, while you solving it, it looks like it's very lengthy and difficult. Say for that, if we take an example of this question, इसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज है जिसके लिए आपको ये पूछा है, लेकिन अगर आप अप्रोच देखोगे तो ये सिंगल अप्रोच आप हर एक सब क्वेश्चन में यूज करोगे। 39 के लिए जो किया वही अभी 29 के लिए करना है, वही 19 के लिए करना है, वही 9 के लिए करना है। सो कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी लेंथी आपको लगता हो, whenever you will approach that question, you try to solve it, it will look like easy for you. उसके लिए उसको पहले अप्रोच करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप देख के ही उसको छोड़ देते हो कि ये तो डिफिकल्ट नहीं होगा हमसे, ये नहीं करना है। जब सॉल्व करने का सीखोगे ना तो एक आध दो बार ऐसा भी होगा कि नहीं होगा या गलत आएगा, लेकिन चलेगा। जैसे अभी ये अप्रोच मैंने आपको सिखा दिया, अभी ये पूरा क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, बस खाली વેલ્યુ બદલવાની છે। 39 ની જગ્યાએ 29 મૂકવાનું, પછી 19 ને પછી 9। સ્પેશિયલી બાયો ગ્રુપ સ્ટુડન્ટ્સ, એમને ફિઝિક્સ અને પાછા એના ન્યુમેરિકલ ભગવાન બચાવે એવું હોય। तो वो बायो स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि 10th तक हमने भी मैथ्स पढ़ा था। एक साल में इतना मैथ्स भूल जाते हो आप।
chalo, as in when you complete this, you please tell me, huh? Is it visible properly? Okay. वाह प्रीत भाई, आपने तो पूरा सॉल्व कर दिया। मतलब 29 मीटर के लिए आंसर आ रहा है 0.07। ओके, देन 19 के लिए 0.016। ओके, एंड 9 के लिए 0.1। ओके, मतलब आपका जो वैल्यू आया है, आंसर आया है, उससे ऐसा पता चल रहा है कि जितना वो नजदीक आता जाता है उतना उसका स्पीड बढ़ता जाता है। अभी 0.0036 है, थोड़ा और नजदीक आया तो 0.007 हो गया, और नजदीक आ गया तो 0.016 हो गया, और 9 मीटर पे तो 0.1 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये चीज कहाँ पे यूज करते हैं पता है क्या? जो प्रो ड्राइवर्स होते हैं ना कार के, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको ये चीज पता होती है। जब आप साइड व्यू ऑफ मिरर में देखते हो, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि जब वो ऑब्जेक्ट दूर होगा तब उसका स्पीड अप्रोच आपके तरफ आने का वो स्पीड कम होगा, जितना वो नजदीक आता जाएगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। सो ऑन हाईवेज, 2-3 लेन हाईवेज होता है, जब आप ओवरटेक करने का ट्राई करते हो तो कोई कार आपको बहुत नजदीक दिख रहा है तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाने का कि अभी दूर है, क्योंकि जो नजदीक होगा तब वो फटाफट निकल जाएगा। गेटिंग विद दिस? अरे भाई 29 पे आंसर 0.007 आ रहा है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। यू वेरीफाइड? हाँ, मेरे को प्रीत भाई ने ऐसा बताया कि ऐसा आंसर आ रहा है, पता नहीं, आई हैव नॉट वेरीफाइड इट। अगर आप ये आपने लिख लिया है तो फिर मैं वेरीफाई करता हूँ 29 रख के। ओके, आपका 0.006 आया। लेट अस चेक इट। થઈ ગયું છે ભાઈ, લખી લીધું? आंसर्स आपको जो भेजना है वो नकुल सर के आईडी पे भेजना है। Okay, let us check it by putting the values at 29. So making change. Suppose अभी ये -39 का -29 हो गया। चलिए, this again becomes -29. यहाँ पे भी -29 करना पड़ेगा। So this will become 29 by, instead of 40 will be 30. Check it, कितना आता है 29 by 30 करके। અનમ્યુટ થઈને કહેજો, ફોન નથી મારી પાસે। 29 by 30 કેટલું આવે છે? 0.967। 0.967 और एक डिजिट बोलो। 0.9666 એવું છે તો 0.967। ઓકે, ચાલશે। ઓકે, देन आफ्टर 1 सेकेंड 5 मीटर वो नजदीक आ जाएगा। सो नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बिकम -24। ये -24 हो जाएगा। This will be -24. So this will be 24 by 25. 24 by 25 એટલે તો 0.96 આવશે। So velocity of image will be, पहले 0.96 था, 967, then it becomes 0.96 after 1 second, so it will be 0.007 meters per second. Is it okay with this?
जिसका बाकी था वो लिख लीजिए, कंफर्म कीजिए। आया था, ऐसा आंसर आया था आप लोगों का? हाँ, वो 0.0066 मतलब 0.07 ही आएगा ना, रिकरिंग डिजिट है, चलेगा। છે ધ્રુમિલ છે, ધ્રુમિલ ને શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? આવ જાવ કરે છે ભાઈ, આટલા બધા નેટવર્ક ઇશ્યુ છે? ओके, चलिए लिख लीजिए ये 29, फिर 19 का सॉल्व कीजिए। आप मेरे को आंसर बताइए। जब वो ऑब्जेक्ट 19 मीटर पे था तब क्या होगा? ईशा के 0.017, ओके। कोई के 0.02, ओके। Okay, 0.017 is prominent answer if I'm बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं। Let I again changes the value. Now it is instead of minus 19, it is minus 19. Minus 29, it is minus 19. Okay. Now minus 19 થઈ જશે. This becomes minus 19. So this will be 19 by 20. 19 by 20. એટલે 95 by 100. So this will be 0.95. After 1 second, 5 मीटर नजदीक आ गया. So it will be minus 19 plus 5. Minus 14 हो जाएगा. So this will be minus 14. So this will be 14 by 15 if I'm not wrong. Check it, 14 by 15 कितना आता है? अनम्यूट होके बताइएगा प्लीज। 0.93 0.93 नहीं, મને 3 ડિજિટ. ઓકે, 93333 આવે છે. હેબિટ ટુ રાઇટ ડાઉન અપ ટુ 3 ડેસિમલ પ્લેસીસ. બધામાં એવું જ કરવાનું, બધામાં 2 સુધી લખાય બધામાં 2 સુધી લખવાનું, 3 સુધી લખાય 3, બાકી બધામાં આન્સરમાં પાછા વેરિએશન આવે. गलत नहीं होगा। जिसने 93 लिया होगा उसका 0.02 आया होगा, जिसने 933 लिया होगा उसका 0.017 आया होगा। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। इज इट ओके विद दिस? ओके, Nidhi says that for 9 meter it is 0.1 meter per second. Okay, Vedanshi VHK છે. Sakshi also telling same answer. તો બધાને આવડી ગયું સોલ્વ કરતા है ને? ओके, अरे उजैर भाई तो बहुत ठंड लग रही है क्या? चलिए, अभी 9 मीटर के लिए वेरीफाई कर ही लेते हैं। आप लोग बोल रहे हो फिर स्टिल बी वेरीफाइड। -9, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। दिस विल बी 9/10, तो ये 0.9 हो जाएगा। आफ्टर 1 सेकेंड 5 मीटर नजदीक आके -4 पे चला जाएगा। सो दिस विल बी -4 अपॉन -5।
प्लस हो जाएगा, so it will be 4/5, so 0.8 आएगा, it will be 0.9 minus 0.8. जिसने सॉल्व नहीं किया था उसके लिए मैंने करवा दिया, so it will be 0.1. now you look a pattern, तो 39 सेंटीमीटर पे 39 मीटर पे जो वेलोसिटी था उससे फिर 29 नजदीक आया तो बड़ा, फिर 19 आया तो और बड़ा, फिर अगर 9 हुआ तो और बड़ा, बढ़ता जाएगा, जितना नजदीक आता जाएगा उतना वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. અને તો એવું જ થાય ને, બાકી તો જો વેલોસિટી ઓછી રાખે તો ગાડી પાસ થઈ ગઈ હોય અને મિરરમાં ના દેખાય, મિરરમાં હજુ બી દેખાય, એવું તો ના હોય ને, વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ થોડી પ્રોડ્યુસ कर सकता है. चलिए क्लियर. प्लीज कंफर्म. रिटर्न. दिस एन आईएमपी क्वेश्चन. सर આટલો મોટો ક્વેશ્ચન 4 માર્ક માં કેવી રીતે પૂછે? तो इसमें आपको 39, 29, 99 चार केसेस दिए हैं, आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे एक सिंगल पार्ट, इट कैन बी a 2 मार्क क्वेश्चन, दो पूछेंगे तो 3 मार्क का हो जाएगा, चार तीन पूछेंगे तो 4 मार्क का. इट कैन बी वेरिएबल एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 39, 29, 99 ऐसा ही वैल्यू दे, इट कैन बी a different values which can be given to you. Clear with this? ओके चलिए, तो आई थिंक सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं. एक 9.1 बाकी है एग्जाम्पल में, थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो, तो चलिए करवा ही देते हैं. 9.1 एंड 9.2 वो तो रीड ही करना पड़ेगा आपको, वॉलंटियर चाहिए मुझे रीड करने के लिए. Will be that volunteer to read it? બોલો બોલો, જ્યાં ના બોલવાનું હોય તો ત્યાં તો આટલું બધું બોલો છો, જ્યાં બોલવાનું હોય છે ત્યાં કશું નહીં બોલતા. चलिए बोलिए कौन बोल रहा है 9.1, एग्जाम्पल नंबर 9.1. मंदिर भाई बोलिए, टेक्स्ट बुक છે ને? Suppose that the lower half of the concave mirror's reflecting surface in figure 9.5 is covered with an opaque non-reflective material. What effect will this have on the image of an object placed in front of the mirror? This is most IMP question for the MCQ is to be concerned. ये आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा कि आपके पास पूरा जो कॉन्केव मिरर था, जो आपको इमेज प्रोड्यूस करके दे रहा था, उसका आधा पार्ट, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव या प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो वाला पार्ट, उसको एक ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कवर कर दिया. मतलब जो हाफ पोर्शन है वही अभी इमेज प्रोड्यूस कर पाएगा. सो व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द इमेज, इमेज में क्या चेंज आएगा? तो पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आपके दिमाग में तो ऐसा है कि होगा कि अगर मिरर आधा हो जाता है तो आपका इमेज भी हाफ हो जाएगा. इज इट लाइक दैट? તમારા ઘરે જે પ્લેન મિરર હોય જેમાં તમે જોઈને તૈયાર થતા હોય, એ મિરર અડધો તૂટી જાય, તમે અડધા જ દેખાઓ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. तो पहले तो ये एक बात क्लियर कर लो कि इमेज का साइज जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. द चेंज विल बी इन इट्स इंटेंसिटी. मतलब जो पहले जो क्लियर दिख रहा था ना वो ब्लर हो जाएगा थोड़ा. यस अनिल भाई करेक्ट, इमेज विल बी फुल बट थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा. लेट अस रीड द आंसर एंड अंडरस्टैंड इट. यस वंदित भाई. You may think that the image will now show only half of the object, but taking the real laws of reflection to be true for all points of the remaining part of the mirror, the image will be that of the whole object. However, as the area of reflecting surface has been reduced, the intensity of the image will be low.
ओके देखो हाँ। ओके इंटेंसिटी कम हो जाएगा बिकॉज इंटेंसिटी होता है एनर्जी बाय एरिया, बराबर। आपने जो इमेज जो मिरर था उसका एरिया कम कर दिया, हाफ कर दिया, तो जो अवेलेबल एरिया होगा चेक करने के लिए वो कम हो जाएगा, वो कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा, मतलब ब्लर हो जाएगा। अब ब्लर हो जाएगा ऐसा याद रखो तो भी चलेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा ऐसा याद रखने का। आर यू क्लियर विद दिस? ओके चलिए प्रोसीडिंग फर्दर विथ एग्जांपल नंबर 9.2, ये बाकी रह गया था। अगेन अ वॉलंटियर टू रीड इट। चलिए समीर सिंह आप ये रीड कीजिए। समीर सिंह इज देयर और नॉट? यस सर। क्या बात है, कीजिए सर रीड एक कीजिए। मिनट, ओ एक मिनट, बुक कोई का बात, पेज करना पड़ेगा। अरे बुक निकाल लो, बुक का पेज निकाल लो, चैप्टर निकाल लो, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा हेल्प कर दूं, ये हम चैप्टर 9 सॉल्व कर रहे हैं, वो हाँ सर, वो बुक पता है, पार्ट 2 में एक्सरसाइज का है। पेज निकालना। ओके नहीं, एग्जाम्पल हमें रीड करना है 9.2। आपको हेल्प करना है तो मैं किसी से पेज नंबर भी पूछ लेता हूँ। बोलिए भाई पेज नंबर। नहीं सर चलेगा। 3-1 हाँ सर मिल गया, मिल मिल गया गया? सर। अरे क्या बात है, चलिए बोलिए। A mobile phone lies along the principal axis of the concave mirror as shown in the figure 9.7. Show by Okay. suitable diagram the formation of its image. Explain why the magnification is not uniform. Will the distortion of image depend on the location of the phone with respect to the mirror? Okay, we are solving for a concave mirror, which we know that we've seen the image formation cases. It can produce a real inverted as well as virtual erect image. बराबर है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। You place the mobile phone on its principal axis, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बराबर है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम, अगर मेरे से गलती हो तो मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिएगा, ठीक है? आई थिंक सो दिस इज अ पार्ट बी, मतलब पोर्शन बी ऑफ अ मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन को ऐसे रखा है। ये वो पुराने वाला मोबाइल फोन है, एंटेना वाला, ऐसा कुछ। I drawn it correctly? Okay. So now you divide this mobile phone in two parts. One end is A, another end is B. तो ये end A है, बराबर है, and ये second end B है। end A कहाँ पे आ रहा है देखिए, उसका फॉर्मेशन, उसका लोकेशन क्या है? end A, that is between F and C। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F and C आता है कॉन्केव मिरर के लिए, तो उसका जो इमेज बनता है A डैश, बराबर है, उसका जो इमेज बनता है A डैश, इसको मैं बोल देता हूँ, दैट विल बी बियॉन्ड C। आप जानते हो केसेस, और उसका टाइप भी जानते हो कि इट्स रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज which will be produced। चलिए तो ये इसका इमेज बनाएगा बियॉन्ड C, मतलब यहाँ पे कहीं पे बड़ा बनाएगा थोड़ा,
ये इसका इमेज हो गया ए डैश। अभी एंड ए हो गया तो एंड बी की बात कीजिए। एंड बी कहाँ पे है उसका लोकेशन, दैट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका इमेज मिलेगा बी डैश, that will be also on center of curvature, at center of curvature, at center of curvature will be proper word। and उसका भी आप टाइप जानते हो, it's a real, inverted and same size। तो यही साइज का इमेज वो वही लोकेशन पे प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इसका इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा उतने ही साइज का, इसको हम बी डैश बोल देंगे। तो अगर आप पूरा इमेज देखोगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बराबर। So this will be image of this mobile phone. This is an object. Now the second question is asked that will the magnification is uniform? So but obviously magnification uniform नहीं होगा, because we are talking about a mobile phone. It's a linear object जिसका कुछ length होता है। So we divide this entire mobile phone in two parts. अगर point object होता है तो उसका magnification linear होता है, बराबर, यूनिफॉर्म होता है, सेम मिलता है। एंड अगर नहीं है तो फिर तो नहीं हो जाएगा ना, यूनिफॉर्म नहीं आएगा। यस, एंड दिस एंटेना विल बी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी उंदू થઈ જાય ना। चलिए सही है। तो आप एक बार आंसर रीड कर दीजिए जिसने क्वेश्चन रीड किया था, सो विल गेट एन आइडिया। समीर सिंह आप रीड करोगे? चलिए Yes, sir. वंदित तू रीड कर दे। हाँ समीर सिंह कर दीजिए रीड। नहीं सर, वंदित को बोला तो वंदित को बोल दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप कीजिए, क्या बात है। वंदित की आवाज तो मैंने बहुत सुनी है, आपकी बहुत कम सुनी है। एग्जाम्पल 9.3। नहीं 9 पॉइंट हमने ये जो 2 पढ़ा ना, उसका आंसर हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि मैंने सही सॉल्व किया या नहीं किया, बस वही। The ray diagram for the formation of the image of the phone is shown in figure 9.7. The image of the part which is on the plane particular to principal axis will be on the same plane. It will be of the same size, that is B dash C is BC. You can yourself realize why the image is distorted. Image is distorted because it's not a point object, it's a linear object. If you want to draw this, you can draw it. And that completes the reflection part of this chapter. हो गया सबका कंप्लीट कि बाकी है ड्रॉ करना? ड्रॉ करना है तो कर लीजिए। वीडियो ऑन रखिए। जितने लोग वीडियो ऑन रखते हैं उनका मेरे को पॉपअप सबसे पहले ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे लोगों को मैं रीड करने के लिए सबसे पहले ज्यादा बोलता हूँ। એટલે એવું નહીં કરવાનું કે રીડ ના કરવું એટલે વિડિયો બંધ રાખવાનો। વંદિત છે, પ્રિયમ છે, પછી આઈ થિંક સો વેદાંશી છે, પછી સાક્ષી સોલંકી, આ બધાના વિડિયો જનરલી ઓન જ હોય છે। ઉઝેરભાઈ है। चलिए हो गया कि बाकी है? कंफर्म कीजिए। बाकी है सर। हाँ कर दीजिए कंप्लीट। फिर आपको ब्रेक दे देते हैं, देन वी प्रोसीड विथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस लाइट।
બહુ બધા લોકો તો એવા હોય કે હજી ફરવા ગયા હોય એટલે આજે જ જોઈન કર્યું હોય. હા. એટલે એમને તો ખબર નહીં હોય કે આ શું ચાલે છે. કોને કહું છું બધાને ખબર પડી જતી હશે. सॉल्विंग द चैप्टर नंबर 9 जिसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है रिफ्लेक्शन वाला. बराबर है. बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने आज ज्वाइन किया था. आज जिसका पहला दिन है. चलिए कंप्लीटेड कंफर्म. ओके. हो गया है. चलिए गुड. So it's 10:13. Take a break up to 10:18. Then we'll resume with the next property of light. Give feedback. Can you hear my voice clearly? And can you see the video also? Fine. You can reply by voice also. Now is the video still available? जिगर सर નોટ્સ પણ હવે નથી દેખાય દેખાતો. નોટ્સ દેખાય છે બરાબર હા નોટ્સ દેખાય છે. વિડિયો નથી દેખાતો ના વિડિયો નહીં. હવે પાછો આવ્યો ખાલી વિડિયો હા હવે ખાલી વિડિયો આવ્યો છે. એટલે સ્ક્રીન શેર ની સાથે વિડિયો બેવ નથી આવતા બેવ નથી આવતું. હા. Okay. So see, you completed one major aspect, that is reflection. Now, before we proceed further with the next aspect, that is refraction, I would like to ensure the understanding on your part. And I want answer by voice. Chat answers nahi, voice answers જોઈએ. Fine. So, my question number 1. Let me add a page and then write down the questions. Yes. So, revision my first question. I'm writing with green colored pen. Yes. Focal length of convex lens is dash. Correct. मैं गलती से लेंस लिख दिया. Focal length of convex mirror is dash. I want the answer positive or negative. Yes. Reply by voice, please. Yes. તો જીગર સાહેબ બરાબર દેખાય છે લખેલું? હા સર દેખાય છે. તો પછી આ લોકો કેમ જવાબ નથી આપતા? ફોકલ લેન્થ ઓફ કોન્વેક્સ મિરર ઇઝ पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. चैट में लिखो पॉजिटिव. किसने दिया आंसर? One person has given answer positive. And why it is positive? कोई justify करेगा? Will it be positive or negative? આવું ના ચાલે. કોઈ પાર્ટિસિપેટ જ ના કરે કે રીતે ચાલે? Who gave the answer positive? Justify your answer.
Because it is in the direction of light. Because it is in the direction of light. એવું ના હોય. So suppose this is a concave mirror. Now, when we consider this as concave mirror, suppose this is the center of curvature, ये focus होगा. So what you have to see is क्या वो mirror के आगे है कि पीछे है? And then you remember sign convention, Cartesian sign convention. कि क्या समझाया था आज का Cartesian sign convention में? कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होगा मिरर के आगे और वहां से रेज जाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द रेज इज कंसिडर्ड पॉजिटिव. The direction of the rays is considered positive. That means the opposite direction is considered negative. Now you see, ये जो distance होगा ये focal length होगा. अब according to this sign convention आप खुद मुझे बताओ क्या वो पॉजिटिव साइड पर है कि नेगेटिव साइड पर है? क्या है आंसर बताओ मुझे. नेगेटिव साइड. तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अरे भाई सी मैंने आपको पूछा है कॉन्वेक्स. Sir, but you have written convex and you have drawn concave. એક્ઝેક્ટલી તો આન્સર ની રાહ જોતો હતો કે મેં લખ્યું છે કોન્વેક્સ ને હું ડ્રો કરું છું કોન્કેવ. એક્ઝેક્ટલી વેરી ગુડ ઓબ્ઝર્વેશન. સો આન્સર કરેક્ટ છે પોઝિટિવ. જેને બી આન્સર કીધો એ કરેક્ટ છે. ધ રીઝન ક્વેશ્ચન ઇઝ ફોર કોન્વેક્સ મિરર. સી व्हेन आई से કોન્વેક્સ મિરર आई हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. જેનો આન્સર હતો બિચારા કોન્ફિડન્સ લૂઝ કરે એવું ના હોય. આવો આવશે. दिस विल बी द मिरर. ये कॉन्वेक्स मिरर होगा. गुड. ये पोल है. इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे चले जाएंगे. वही कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करो. दिस साइड इज पॉजिटिव. तो ऑब्जेक्ट तो मिरर के आगे होगा. सो ये पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड है. सो करेक्ट आंसर एज पर दिस साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव. सो याद रखवानुं फॉर कॉन्वेक्स मिरर F is positive. So convex mirror के लिए F पॉजिटिव होगा तो समझ जाने का. कॉन्केव मिरर के लिए F is नेगेटिव. क्योंकि उल्टा जो मैंने पहले ड्रॉ करके बताया वो आएगा. बराबर. फिर F is पॉजिटिव तो R is also पॉजिटिव. यहाँ पे F is नेगेटिव तो R is also नेगेटिव. समझ पड़े. सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए F और R पॉजिटिव, कॉन्केव मिरर के लिए F और R नेगेटिव. कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए नेगेटिव. देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन M का वैल्यू क्या होगा फॉर प्लेन मिरर? प्लेन बोथ. It will be 1. 1 +1 or -1? +1. Justify your answer. Why +1? Sir, because object height and image height is same and both are in, one is negative and one is positive, so it will be +1. मन्ना समझ पड़ी. Sir, if we consider a plane mirror ले लो. Now I keep an object in front of it. ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U. तो इसका इमेज जो जाएगा पीछे वो उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा और ये हो गया इमेज. दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज. नाउ मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, yes, normal formula is -V by U. Magnification is -V upon U. माइनस हो के प्लस हो.
Now in this case, plane mirror है plane mirror. This is for mirrors. ये magnification का formula है. Now when you consider for plane mirror, so magnification would be, my question is +1 और magnification is -1. तो आपको इमेज का टाइप देखना है. प्लेन मिरर में कई इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है कि रियल और इन्वर्टेड? यस, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन +1 की -1? +1. +1. क्यों? किसने बताया +1? जस्टिफाई और आंसर. चलो हाँ बोलो. It हाँ, will बोलो, be बोलो. virtual and erect of same size. Very good. This virtual and erect image of same size. So magnification is +1 is correct answer. किसी का कोई डाउट इससे रिलेटेड? Anybody having any doubt? है कोई डाउट? Reply please. कोई डाउट આવે છે યતી સર તમને પૂછ્યા છે? ના સર કન્ફ્યુઝ નહીં કરતો. ઓકે ઓકે. સર નથી પૂછ્યા કોઈ ડાઉટ. ઓકે ઓકે ઓકે. તો મારે ડાઉટ પૂછવો છે. Okay. See, dash mirror always gives virtual, erect, and small image. फिर next, dash mirror always gives virtual, erect, and same size image. बताओ मुझे आंसर्स. Convex and plane. कौन आंसर आप पे है? प्लीज गिव योर नेम. बोथ आंसर्स आर करेक्ट. एक में कॉन्वेक्स आएगा और दूसरे में प्लेन मिरर आएगा. यस. नाउ नेक्स्ट, concave mirror gives real, inverted, and large image when object is placed dash. Concave mirror gives virtual, erect, and large image when object is placed dash. चलो. Give the answer. First one is at focus or beyond focus. Yes students, ये टेबल जिगर सर ने करवाया होगा आपको. बताओ मुझे आंसर. So first between C and F. किसने आंसर दिया? Diksha.
Yes, Diksha, your answer is correct. It is between F and C. Correct. चलो then between F and C आएगा. Second Yes. between of focus and pole. Correct. ये किसने आंसर दिया? Vanshika. वंशिका का भी आंसर करेक्ट. ये दोनों आंसर्स करेक्ट. Concave mirror gives real inverted and large image when object is placed between F and C. Concave mirror gives virtual direct and large image when object is placed between F and P. Now, now next. Say I'm making the change in this. So concave mirror gives virtual erect and small image. And similarly यहाँ पे भी small. चलो बताओ. Virtual erect and small and real inverted and small. कब होगा? बोलो बोलो. First case at infinity. क्या फर्स्ट में आंसर? Infinity. नहीं. Beyond C. करेक्ट आंसर यस. इसमें आएगा आंसर बियॉन्ड सी. रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल में बियॉन्ड सी. The second case not possible. वेरी गुड. ये किसने कहा सेकंड में नॉट पॉसिबल? Vatsala. Who gave this answer? सेकंड वाला नॉट. वत्सला. वेरी गुड. सेकंड इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट में स्मॉल इमेज आती ही नहीं है. कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट में स्मॉल आती नहीं है. रियल इन्वर्टेड में ही स्मॉल आती है. सो सेकंड का तो आंसर नॉट पॉसिबल आएगा. वो समझ पड़े सारू के भाई. वेरी गुड. वेरी गुड. गुड. चलो नेक्स्ट. ये लास्ट वाला जो नॉट पॉसिबल था वो समझ में आ गया ना. ये बहुत अच्छा लगा मुझे. नाउ when object is placed at infinity in front of concave mirror, image formed is dash and at dash. क्या? Object is at infinity in front of concave mirror. तो इमेज कैसा होगा? Similar दूसरा क्वेश्चन. When object is placed at infinity in front of convex mirror, image formed कैसा होगा और कहाँ होगा? बताओ. Real inverted and point like at F. वेरी गुड. ये किसने आंसर दिया? Rudra. वेरी गुड. रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट लाइक इमेज. परफेक्ट. एट फोकस. बराबर है. चलो बहुत अच्छी बात थी. You know the difference between these two? कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ में क्या डिफरेंस है? Capital F is One is focal length and another is focus and F is focal length. कैपिटल एफ इज प्रिंसिपल फोकस. ये एक पॉइंट है. एंड स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ. ये डिस्टेंस है. सो स्मॉल एफ फोकल डिस्टेंस आएगा. कैपिटल एफ फोकस आएगा. वो एक पॉइंट होगा. चलो नेक्स्ट वाला आंसर.
Object is placed at infinity in front of convex mirror. Image formed. Virtual erect point sized. Virtual erect and point like image. Okay, At F behind mirror. very good. At F behind the mirror. ये किसने आंसर दिया? Rickshaw. दीक्षा. वेरी गुड आंसर. चलो, बाकी सब स्टूडेंट्स को समझ में आया कि ये 5-10 स्टूडेंट ही समझ रहे बाकी के सब सो गए. गुड पार्टिसिपेशन. अच्छा लगा. आपके आंसर्स भी करेक्ट है मेजॉरिटी केसेस में. दैट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग. रियली हैप्पी अबाउट इट. चलो, ये भी जाने देते हैं और अब नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं. जस्ट दैट इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन समझना है तो पहले हम फंडामेंटल केस ले लेते हैं और फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. सो हियर आई एम considering this line. This is line separating two different media. So medium 1, medium 2. So दो अलग अलग मीडियम है. You consider a ray of light. Consider a ray of light incident like this. Oblique ray of light. This is known as ray. Angle बड़ा है ऐसा होना चाहिए. Now at the point of incidence, you draw the perpendicular line. This perpendicular line drawn at the point of incidence is called normal. Normal to surface at point of incidence. Normal to surface at point of incidence. This is observation. Now observe is what you observe is that oblique ray. तो हमारे पास दो ऑप्शन है. हमारे पास तो वॉइस लैग થાય છે. ऑप्शन है. एक तो या तो वो ऐसे होगा, होंगे, या तो 1 होगा या तो 2 होगा. इधर 1 और 2. फिर से बताओ, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे वाईफाई बंद हो गया था. ओके, वी गो बैक टू अवर नोट्स. चलो, ये डायग्राम अब दिख रहा है आपको? सो कंफर्म इट प्लीज. सो या तो वो 1 में जाएगा या तो 2 वाले पाथ पे जाएगा. बट द फैक्ट इज उसका जो ओरिजिनल पाथ है ना, वो कंटिन्यू नहीं होगा. ये कंटिन्यू नहीं होगा. So either it bends like this or it bends like this. So the statement goes like this: when an oblique ray of light is incident at surface separating two mirrors,
मीडिया, मीडियम का प्लूरल मीडिया, इट बेंड्स आइदर सॉरी एक मिनिट सर, तो स्क्रीन નથી આવતી તમારે, કેમ સ્ક્રીન નહીં? નથી આવતી સર. ચલો આપણે કરીએ, એક મિનિટ કામ કરીએ, ચાલો ફરીથી કરીએ. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब कंफर्म करो, चलो. હવે આવે છે સર. सो ये जो मैं ड्रॉ करके बता रहा था वो ये था कि इंसिडेंट रे जो है, ऑब्लिक इंसिडेंट रे, तो जो इमर्जेंट रे आएगा यानी दूसरे साइड पर जो रे जाएगा वो आइदर इट विल बी दिस, तो या तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगा वन, so refracted ray will be either 1 or 2, but one thing is sure, it cannot be the original direction. So when an oblique ray of light is incident at a surface separating two media, it bends either towards or away from the normal. It bends either towards or away from the normal. So bending तो होगा, towards या away वो medium की density पे depend करेगा, bending तो होगा. This phenomenon is called refraction. Refraction क्या है? So refraction is the phenomenon of bending of light at a surface separating two media. ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. अब हम नोट्स में से देखते हैं. When a beam of light passes from one medium to another, a part of light reflected back into the first medium while the rest enters the other. So direction of propagation of an oblique incident ray that enters the other medium changes at the interface separating two media. This phenomenon is called refraction. अब इसमें ये जो वापस है उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं. हमें ये देखना है कि जो इंसिडेंट था वो जब बाहर आया तो उसका जो पाथ था वो चेंज हो गया. Is this concept clear? Any direction change થાય એ બીજા મીડિયમમાં એન્ટર થાય ત્યારે. अंडरस्टूड. और यही बात मैंने यहाँ पे लिख के बताई. सो फिर वो टुवर्ड्स बेंड करेगा कि अवे बेंड करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कौन से मीडियम से उसका इंटरेक्शन होगा. दैट मीन्स रेयर मीडियम से या डेंस मीडियम. सो मीनिंग मैं समझाता हूँ. बट इज दिस आइडिया क्लियर? ये तो 10th का रिवीजन है, इसमें कुछ नया नहीं है. शायद 7th 8th में भी सीखा था, फिर 10th में भी सीखा. Clear? Anybody having any doubt, please ask. Yes, please. कोई डाउट है तो पूछ लो. Yes, please. कोई डाउट? जीवर सर कोई डाउट पूछे कि नहीं બધા સુઈ ગયા છે? ના સર કોઈ પૂછ્યો તો નથી કઈ. चलो, तो ये रिफ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन हो गया. मैंने जिस तरह से ड्रॉ करके रखा था वो इजी था समझने में. ये जो डायग्राम है अभी इधर गिवन पेज पर, ये थोड़ा 3D पर्सपेक्टिव में है. और जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं ना,
तो ये इनिशियल रिफ्लेक्शन वाली बात जरूरी नहीं है. यू सिंपली हैव टू से कि वो जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो उसका पाथ चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट्स इट. इससे ज्यादा इसमें रिफ्लेक्शन को याद करने की कोई जरूरत नहीं. नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये करेक्शन है वर्ड. देखो यहाँ पे वर्ड करेक्शन हुआ है, यहाँ पे करेक्शन था. द वर्ड इज लाइक दिस, इट इज इंटरफेस. इंटरफेस FAC, PHAC फेस वाला फेस नहीं, FAC. इंटरफेस मतलब सरफेस, सेपरेटिंग टू मीडिया. सो सरफेस वर्ड લખવાનો ને, આવો વર્ડ લખીએ કે જેનાથી મિસ્ટેક થાય શું કરવા પડે. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. इसमें आपके बुक के हिसाब से 2 लॉज है. फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल. मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो फर्स्ट लॉ तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. ये है सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया. सरफेस के ऊपर मीडियम 1, मीडियम 2, ये वो नॉर्मल. यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रखेंगे. ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये हो गया इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. और इस केस में मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे ले रहा हूँ. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. I means angle of incidence. R means angle of refraction. So what you can see is first law इसमें दिखे जाता है. Incident ray, I'll highlight it. Incident ray, refracted ray, and normal. They all lie in the same plane. Plane आज है. ये जो हमारा horizontal screen है, वो plane है. तीनों सेम प्लेन में है. ये फर्स्ट लॉ हुआ. आई बात समझ में? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट लॉ. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये फर्स्ट लॉ हुआ. कंसेप्ट क्लियर सबका? फिर फर्स्ट के बाद एक्स्ट्रा में एक पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, they are on opposite sides of normal and they are in 2 different media. तो देखो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के लेफ्ट में है और मीडियम 1 में है. तो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के राइट में है और वो मीडियम 2 में है. तो दोनों का मीडियम भी अलग और दोनों का साइड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल भी अलग. With respect to normal, they are on different sides and their मीडियम आर ऑल्सो different. ये एक सेकेंड पॉइंट है. ये आपके बुक में लिखा नहीं है बट ये है. सो ये हुआ सेकेंड लॉ. एंड देन देयर इज थर्ड व्हिच इज नोन एज स्नेल्स लॉ. ये सब जगह पे होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मोस्टली पूछते हैं स्नेल्स लॉ. ये ऑब्जेक्टिव है. इट इज वेरी सिंपल. इट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट. सो इट इज sin I upon sin R is constant. This constant is known as the refractive index. It is relative refractive index of medium to with respect to medium. The ratio of sin of angle of incidence and that of sin of angle of refraction is constant, and it is shown by eta to 1, which is relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. सबको समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो. तीनों लॉज. ये 1 और 2 के बीच में मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी समझाया. यस 1.5 कह सकते हो. यस जिगर सर, अगर पूछी ने कंफर्म करना तरह लॉज खबर पड़े. ओके सर. यस
You want the statement of first law of refraction from your side? Will tell me that. Yes, Asta. First law of refraction, incident ray, reflected ray, and normal to the surface at the point of incident all lie in the same plane. Okay. Chaliye, the next question, reply me in chat box. The ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium is called blank. कांस्टेंट तो है, ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? I'm getting correct answer from Khushi, Vijay Patel, then Sakshi, then Arhan, then हनी भाई ने सही आंसर बताया, वत्सला. ओके, ऑल ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर. म्यू आर नहीं होता है बंदित, इट्स एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. चलिए, then can anyone tell me that what will be the refractive index of air? Very good, getting correct answer from Vatsala, then Priya, Komal. Okay, and I'm asking you that a refractive index of any medium is, absolute refractive index of any medium is 0.8. True or false? Okay, I want answer with justification. Trisha, your answer is correct. Ashta, your answer is correct. But I want answer with justification. कौन अनम्यूट होके बताएगा? चलो चलो फटाफट. ओके, प्रीत भाई बोल रहे ट्रू, अनी भाई बोल रहे ट्रू, त्रिशा से फॉल्स, आस्था फॉल्स. ओके, त्रिशा, कैन यू justify your answer? Why you're telling that it is false statement? कोई नहीं, वेरी बैड. भाई आपने ऐसा बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. अभी सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड तो वैक्यूम में मतलब एयर मीडियम में मिलता है, तो वो केस में आप रेशियो लोगे तो c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम आल्सो बिकम c, तो वो 1 हो गया. सो एयर हैज अ मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बाकी कोई भी मीडियम देखने जाओ उसमें c का वैल्यू तो v से ज्यादा ही होगा ना, या v का वैल्यू c से कम ही होगा, तो वो जो रेशियो है वो तो 1 से बड़ा ही मिलेगा ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ, कैन नेवर बी लेस देन 1. क्लियर विद दिस? चलिए, then next question is that light is traveling from medium 1 to medium 2. medium 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वो θ1 है. जो दूसरे मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, η2 है, और उस वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 है. I want a mathematical statement of Snell's law from your side. Will tell me that. η1 वाले मीडियम में से θ1 एंगल बना के η2 वाले मीडियम में θ2 एंगल बना के जा रहा है. स्नेल्स लॉ का मेरे को मैथमेटिकल स्टेटमेंट चाहिए. ओके, sin θ1 upon sin θ2 is constant. I agree, but which constant? वो constant को क्या बोलते हैं? Sin of angle of incidence upon sin of angle of reflection is constant. I agree. वो constant क्या है? Really?
साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज n12 आएगा, चेक कीजिए गलत है। Yes, it is eta 21. Relative refractive index of medium 2 with respect to 1. तो sin theta 1 by sin theta 2 is n 21, that is eta 2 by eta 1. क्या आप इसको सिंपली याद रखना है तो ऐसा याद रखो, eta 1 sin theta 1 is equal to eta 2 sin theta 2, तो गलती नहीं होगी। Are you clear with this? Okay, is there any doubt regarding this? Okay. So, sir, satisfactory answer? हाँ हाँ सर, बराबर आपको जबरदस्त। Good, good, good. Sure. ये diagram clear and I'm removing it now. So see, ये जो मैं आपको समझा रहा था Snell's law. Sin I upon sin R is constant. That is for relative refractive index of 2 with respect to 1. And then you have to remember, yes, sin I upon sin R is refractive index of 2 with respect to 1. But that is also written as eta 2 upon eta 1. Relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of absolute refractive index of medium 2 and absolute refractive index of medium 1. तो अब ये दोनों को आप कंपेयर करो, ये दोनों यानी इनको एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से व्हाट यू गेट इज eta 1 sin I is eta 2 sin R. Eta 1 sin I is eta 2 sin R. So eta 1 sin I is eta 2 sin R. ऐसा होगा। This is known as general form of Snell's. इतना जो है ये, this is known as Snell's law. और नीचे जो लिखा है मैंने जनरल फॉर्म ऑफ Snell's. Please note it down and be careful about it. These are very important for objectives. Yes. और अभी उसका यूज भी मैं बताता हूँ। प्लीज कंफर्म समझ में आया कि नहीं? Yes. Now see two simple aspects related to this.
यस प्लीज। सी, यहाँ हमारे पास दो केसेस है। फर्स्ट केस में हम फर्स्ट मीडियम को डेंस मानते हैं एंड सेकंड मीडियम को रेयर मानते हैं एंड ये नॉर्मल बना दिया। नाउ सी, ये इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या होगा इस केस में? तो पॉइंट इज लाइक दिस, ये बेंडिंग ऐसा होगा, ये आर डेंस है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर से ज्यादा होगा, n1 greater than n2, तो what you observe is I less than R। स्क्रीन पे दिखाई देता है, समझ में आता है सबको? n1 greater than n2, I less than R। ये फर्स्ट केस है। फिर सेकंड केस, ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है और ये नॉर्मल बना दिया मैंने। अब हम उसमें मार्क कर देते हैं n1 n2। सो सेकंड केस में n1 लेस देन n2 यानी रेयर से डेंस जा रहा है। सो अगेन टेक इंसिडेंट रे I, ये। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व इज ये रे ऐसे गया आगे। सो व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि I ग्रेटर देन R। और ये बात का सिग्निफिकेंस आपको जनरल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ से मिलेगा। इससे आपको ये बात समझ में आ सकती है। अगर n1 मोर है तो n2 लेस होगा, तो ऑब्वियस है उसके साथ ये साइन आई वाला पार्ट लेस होगा, साइन आर वाला पार्ट मोर होगा। तो इधर आई लेस होगा, इधर आई मोर होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट जस्टिफाई होगा। समझ पड़े बताने जो, और फर्स्ट समझ में आए तो सेकंड भी समझ में आ जाएगा। और इसमें कोई भी डाउट है आपको, हम आपको दोबारा समझाते हैं, प्लीज कंफर्म इट। और इसको याद करने का एक बढ़िया सा तरीका है, इट इज DRAW। जो वर्ड है ना DRAW, वो क्या है कि डेंस से रेयर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये वाला पॉइंट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट अगर रेयर से डेंस होगा तो इसका उल्टा यानी टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा। प्लीज नोट इट डाउन। कुछ डाउट है तो पूछो। यस प्लीज। Yes, Jigar sir, please confirm this aspect. પછી આપણે સેશન બી પૂરું કરી દઈએ આનાથી. Applications will take in the next class. That is in the afternoon, right? Yes. You reply me in chat box. Light is traveling from a medium having a refractive index 2 to the medium having a refractive index 1.5. Then I और R का रिलेशन क्या होगा? Where I is angle of incidence and R is angle of refraction. रिलेशन में आपको आंसर बताना है, इक्वल, लेस और ग्रेटर। क्या आंसर आएगा? नहीं, हमें रिश्ता चाहिए I और R के बीच में। ओके, गुड, वेरी गुड। इतना पता चलता है, बहुत अच्छा है कि जो भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा होना चाहिए, तो आई इज लेस देन आर या आर इज ग्रेटर देन आई, ऐसा होना चाहिए। बिकॉज हमने बोला कि लाइट ट्रैवल कर रहा है n1 दैट इज 2 to n2 दैट इज 1.5, तो डेंसर टू रेयर जा रहा है।
मूव अवे होगा, जो पहले किसी ने मेरे को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if light is traveling from optically rarer medium to denser medium, उसका बेंडिंग कैसे होगा? अभी मेरे को आई और आर का रिश्ता नहीं चाहिए, बेंडिंग कैसे होगा? ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, इट विल बी टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लोजर टू नॉर्मल, जो भी आप बोलना चाहो, करेक्ट है आपका आंसर। ये दोनों डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे ये स्नेल फ्लो और उसके जो डिफरेंट टर्म्स है वो खत्म हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल में भी आपको काम लगेंगे। Are you getting with this? If any doubt regarding this, you can ask. Okay. सर क्लियर तो के છે બધા? हाँ तो भाई सर पूરું कर दઈએ, Okay, 5 મિનિટ sir. વહેલા વાંધો નહીં કઈ, not an Okay. issue. Tomorrow, today afternoon 3 to 4:30 there is extra class. Don't forget to attend that. Yes, please. Today afternoon 3 to 4:30 there is extra class. ભૂલી ના જવાય, ધ્યાન રાખજો. ગઈકાલે 2-4 જણા ભૂલી ગયા હતા. Yes sir, બીજી કોઈ instruction આપણે આપીને પૂરું કરી દઈએ તો. ના સર બસ બીજું કઈ આપવાનું નથી. આ થર્સડે ના ફિઝિક્સ નો ટેસ્ટ છે એ લોકોને, એના આઈએમપી ક્વેશ્ચન ઓલરેડી ડિસ્કસ થઈ ગયા છે અને ગ્રુપ પર બી સેન્ડ થઈ ગયા છે.